आज हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर और डायनामो। We can also say that this is a coil rotating in a magnetic field. Okay, this is a very important topic because for electrical engineering this is a fundamental how alternating current is generated. हम लोगों ने Faraday's principle में पढ़ा है E is equal to d phi by dt. When electromagnetic force EMF is induced, the formula is rate of change of magnetic flux, and magnetic flux is given by VA cos theta. Then how EMF is generated? Either by changing D or by changing A or by changing theta. We have learned two methods. Number one, how to change B. So there is a coil and we bring a magnet from this point to this point. When we bring it here, the B related to this coil keeps on changing. पहले B कम होगा, पास में आएगा, B बढ़ता जाएगा, and B will change. Therefore, an EMF is induced here. और अगर सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी. This is changing B. Changing area that we have seen in this question, motional EMF. Here we fit a galvanometer. Here is magnetic field. This is a conductor of length L. When we are moving it in this direction with velocity v, then this area goes on increasing. When this area goes on increasing, there is an EMF induced across this conductor. This is when we are changing area. Now, third thing we will study today, how we can change theta. So when we change theta, even then EMF is generated. So when we are changing theta, that means here is a coil which is placed in a magnetic field and we are rotating it. When we rotate it this way, the theta is changing. If theta is changing, then EMF will be produced. There is a rate of change of theta. So this is basic principle of AC generator, and now we will study it in the manner how you will write it. Okay. So first, introduction. It is a device which generates electricity. In other words, it generates electrical energy, but energy is conserved and we can only transfer it. So we can say it converts mechanical energy into electrical energy. So this is introduction of this machine. This machine is we are using everywhere. In our power plants, we are using it. In our motorcycle, in our car, wherever we need electricity for the bulbs, for all other things, we are using this
DC generator. Even on the bicycle, we are using a dynamo for ride. Okay, so this is the introduction. Then, what are the principles in physics on which this will work? Principles. So this works on the principles of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? Faraday's law. Whenever magnetic flux linked to a coil change, an EMF is induced. So it works on that principle. Then we come to its description and diagram. It has basically three components. It has basically three components. Number one, stator. Stator means which remain stationary. Magnets to create a magnetic field. Second thing, a rotor, or we also call it armature. It is a coil which rotates. This is armature. It is the coil which will rotate. And third we have is a commutator. Commutator is a set of slip rings and carbon brush. Set of split rings and carbon brushes. So these are mainly, it is divided into three parts. Now we take the diagram of this. A coil is placed This is a coil which is free to rotate in vertical axis. This is the axis, any axis. It is free to rotate between a magnetic field. This may be an electromagnet. Because of north-south pole, there will be a magnetic field in this space. Set of physics. B. Yeah. Slip rings or Slip rings. Slip rings. Okay. The coil
coil is mounted on a shaft. So this magnetic field is created with the help of electromagnets. ये अगर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की तो कॉइल के घूमने की एक्सिस कैसी होगी? नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. This is direction of axis. So the coil will rotate in this manner. This is how it will rotate. Okay. This is mounted on a shaft. We can assume that this is mounted on a shaft like this. Okay. These two magnets with the magnetic field, ये क्या फॉर्म करते हैं? स्टेटर. That is magnetic field. ये जो कॉइल शाफ्ट पर घूम रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? रोटर और द आर्मेचर which can move around. उसके बाद तीसरा सिस्टम देखिए. ये कॉइल नीचे आकर यहाँ पर एक रिंग के साथ कनेक्ट होगी. There is a ring here and this coil is connected with this ring. There is another ring here and this coil, this connects with this second ring. So one end of the coil is connected with one ring, other end of the coil is connected with the other ring. So one end with one end the other. They are not connected to each other. These two rings are coaxial with this. Coaxial मतलब जब ये कॉइल घूमेगी तो रिंग भी घूमेंगे, दोनों का सेंटर, दोनों की एक्सिस एक ही है. Two rings are connected. Two rings free to rotate about same axis. Are fitted on the shaft. Two rings free to rotate about same axis are fitted on the shaft. Each end of coil or each terminal of coil
is connected each end of the coil is connected to one ring. Then there are two carbon brushes. Pressed against ring. यहाँ पर हमने एक कार्बन ब्रश ऐसे लगाया. कार्बन ब्रश क्या होता है? इट इज ए बॉक्स सॉर्ट ऑफ थिंग. ये पर इसका साइज बहुत छोटा होगा, सिर्फ इतना, जैसे आपके रबर होते हैं इरेजर, उस साइज से इतना सा कार्बन का एक टुकड़ा रहेगा. इसके स्प्रिंग लोड करके यहाँ से स्प्रिंग लोड कर देंगे एंड दिस इज फिक्स. दिस स्प्रिंग विल कीप ऑन प्रेसिंग द कार्बन टुवर्ड्स द रिंग. तो इस रिंग के साथ ये कार्बन ब्रश और दूसरे रिंग के साथ दूसरा कार्बन ब्रश. These two are fixed, and from here we take out the current. Okay, so there are two fixed carbon brushes pressed against rings. The rings rotate and slip over brushes. Because the rings are slipping over the brushes, what is the name they are given? Slip rings. Because they can slip with the brush. So this is our arrangement. The carbon brushes are connected with external circuit. Is connected with external circuit. Okay, so this is a scheme diagram of our AC generator. Okay, now how does it work? How the each part work? उसको देखेंगे and we will write working. The coil is rotated with help of an external source.
इसको हमने घुमाना होता है एंड देयर मे बी एनी सोर्सेस, जैसे जो हमारे पावर हाउस है उसमें सोर्स होता है टरबाइन। इस शाफ्ट में हम एक टरबाइन लगाते हैं, इट इज लाइक ए फैन, ऐसा एक फैन होगा और उसमें जब स्टीम ऐसा आके हिट करेगी तो ये फैन ऐसे घूमेगा। द फैन इज ऑन द सेम शैफ्ट और जब ये फैन घूमेगा तो इसके साथ में पूरी शैफ्ट घूमेगी, शैफ्ट के साथ में कॉइल घूमेगी। फैन को जब हम घुमाते हैं दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, so that mechanical energy is given to the coil. Now, okay, that was an external source. यही चीज जब हमारी कार में लगती है या मोटरसाइकिल में लगती है, उस समय हम इसको घुमाने के लिए इंजन को यूज करते हैं। जब इंजन घूमेगा तो उसके साथ बेल्ट लगा के डायनमो लगा देते हैं, डायनमो साथ में घूमता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के रिंग के साथ, टायर के साथ में एक रिंग लगा रहता है, वो रिंग उसके साथ फ्रिक्शन होता है और कॉइल घूमता है। सो बाय एनी वे हमारा पर्पस है कॉइल को घुमाना, ठीक है। इसको जो एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी के कारण डायनमो का अलग अलग नाम हो सकता है, जनरेटर का अलग अलग नाम हो सकता है, ओके। जो उसका सोर्स होता है, जैसे थर्मल पावर, व्हाट डज इट मीन? टरबाइन में जो हम पावर दे रहे हैं स्टीम से, और स्टीम कैसे बनती है? बाय थर्मल एनर्जी ऑफ द कोर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? थर्मल पावर। इलेक्ट्रिसिटी तो एक जैसी ही बनेगी। इसी तरह से अगर हम कोयला जलाने की बजाय न्यूक्लियर पावर से हीट पैदा करेंगे, उस हीट से स्टीम बनाएंगे, उस स्टीम को इसमें ड्रॉप करेंगे और वो स्टीम से ये घूमेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी। That powerhouse will run with the nuclear energy. तो इस तरह से ये वाला सिस्टम, जनरेटर और डायनेमो, ये तो सब में लगेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। हाँ, कॉइल को घुमाएंगे किससे? वो जो पावर है उससे हम इसका नाम करते हैं, whether it is आइडल पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर। आइडल में क्या होगा? You understand? पानी ऊपर से नीचे गिरेगा और वो ब्लेड पे गिरेगा, टरबाइन को घुमाएगा, अल्टीमेटली हमको घुमाने से मतलब। ओके, सो द कॉइल इज रोटेटेड विद हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। The induced EMF is generated across two ends. Across two ends of coil. i.e. across two rings, क्योंकि दोनों एंड्स को हमने किसमें लगाया हुआ है? एक एक रिंग में लगाया, तो दोनों रिंग्स में ईएमएफ आ गया। अब दोनों रिंग कार्बन ब्रश के साथ स्लिप हो रहे हैं, उसके साथ कांटेक्ट में है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कार्बन ब्रश में आ जाएंगे। तो टू रिंग्स, दिस ईएमएफ इज ट्रांसफर्ड, this EMF is transferred to carbon rings. And from there to external circuit. जो EMF रिंग्स में बना, जो कॉइल के दोनों एंड्स में बना, वो दोनों रिंग में आ गया, रिंग से टच होके कार्बन ब्रश में आ गया, और कार्बन ब्रश तो फिक्स है, इस पे ये बाहर आ गया। तो पावर हाउस से ये दो लाइनें बाहर निकलेंगी, डायनेमो से इन दोनों में ईएमएफ होगा, और ये जो बाहर आएगा ये हमारे घर पे आ जाएगा।
जो हम अपने प्लग में देखते हैं, दो लाइनें आती हैं, एक ये और एक ये। इसके बीच में हम अपना बल्ब लगाते हैं, फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उस सब को हम क्या बोलेंगे? लोड। तो उस लोड के अक्रॉस ये लगता है। तो जब हमारे बल्ब में से ऐसे करंट फ्लो होती है तो उस करंट का थोड़ा सर्किट देखिए। यहाँ से करंट आएगी, ऐसे जाएगी, कार्बन ब्रश इस रिंग से इस कॉइल में, इस कॉइल से पूरा ऐसा ये हो। इवन हम लोग एक बल्ब भी ऑन करते हैं तो उसकी करंट पावर हाउस के रोटर में से रोटेट होकर आती है। तो ये नहीं है कि कोई लोकल जनरेटर कोई और है या ये पावर हमको सब स्टेशन से आ रही है, ट्रांसफार्मर से आ रही है, ओके, कहीं से भी आ रही है, पर अल्टीमेटली हम एक बल्ब भी ऑन करें, एक फैन भी ऑन करें तो सर्किट कंप्लीट कहाँ होता है? पावर हाउस के रोटर में जाके कंप्लीट होता है। दिस ओके, so this way we get the load. This is working. So when we rotate it, we get EMF across it. Now, how we do the calculations? कितना EMF जनरेट होगा, किस प्रिंसिपल से जनरेट होगा, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। ये जो पोर्शन है, rings and carbon brushes, this portion and this portion, इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। स्टेटर और मैग्नेटिक कॉइल, this and this is rotor or rotating coil, we can also call it armature. And this portion, this is commutator. Commutator means it commutes electrons from coil, from ring to the carbon brush. इलेक्ट्रॉन वहां कम्यूट होते हैं, कंटिन्यूअस स्लिप होता रहता है, so this is a commutator. Okay, so these are the basic parts. This is the basic part. It's very simple. Then we go for the calculation. EMF generated. That will be number 5. EMF generated. Okay, flux linked to this coil. Flux linked to coil phi is equal to N B A cos theta. Now, what is N? Number of turns in the coil. B, strength of magnetic field. A, area of cross section. Theta. Theta is angle between area vector of coil and magnetic field. Area vector of coil and area vector of coil, that is A, and magnetic field B. ये है थीटा। ओके, थीटा के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन और। If the coil is rotating with a uniform
uniform angular velocity omega if the coil is rotating with uniform angular velocity with uniform angular velocity omega, then angle made after time t, theta equal to omega t. What is angular velocity? Angle made in 1 second. अगर कॉइल को ऐसे घूमते हुए 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड, तो उसने कितना एंगल बना लिया? 2 ओमेगा. 3 सेकंड हो गए 3 ओमेगा. t सेकंड हो गए तो ओमेगा t, t ओमेगा. So omega t is theta. What is omega in this? Angular velocity. Angular velocity क्या होता है? 2 by f. This we know. 2 by nu or 2 by f. What is nu? Number of cycles in 1 second. That is nu. Okay. So theta की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Omega t. Omega t. So what we have here is the flux. Therefore, magnetic flux phi is equal to n d a cos omega t. This is a flux linked with the coil. N d a cos omega t. Now, since the coil is rotating, there will be a change in the flux. Since coils rotate, there will be change in flux. And according to Faraday's law, change in flux induce EMF. Therefore, according to Faraday's law, induced EMF E is equal to minus d phi by dt होता है E, and this we put as minus d by dt of phi, और phi की वैल्यू हमने ये लिखी है as a function of time. This is NBA cos omega t. So this is d by dt of NBA cos omega t. This is EMF induced. Okay, ये आ गया. Now we can differentiate this. So E will be E is equal to, okay, यहाँ पर जो हमने एक कॉइल लगाई, एक बार बनाकर लगाई और उसको हम घुमा रहे हैं. क्या क्या चीज घूमने के दौरान चेंज नहीं होती? ड्यूरिंग द मोशन व्हाट विल नॉट चेंज? नंबर ऑफ टर्न्स. वो जब घूम रही है तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होती. मैग्नेटिक फील्ड भी वो भी चेंज नहीं होता. उसका एरिया वो भी चेंज नहीं होता. तो एन बी ए ऑल दिस थ्री आर कांस्टेंट. व्हाट विल चेंज? थीटा, दैट इज ओमेगा t. So this is variable and this is constant for a given set and this is variable. इसलिए डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? d by dt cos omega t, and what we get out is minus nba, minus nba differentiation of cos omega t. And now you can do it. How it will be? Minus nba, d by dt of cos omega t. This is sin omega t, and differentiation of omega t will be omega. This is function of a function.
ओके, ये सबको क्लियर है? ये सब ने किया हुआ है। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा t, then differentiation of omega t is equal to omega, but you know this is minus. ठीक है? d by dt of sin omega t is cos omega t, but d by dt of cos omega t is minus sin omega t. Okay, so we put a minus here, then this minus with this minus become plus, and what we get is nba, this omega we bring here, nba omega sin omega t. This is our expression for EMF induced. और इसमें हर एक क्वांटिटी को हम पहचान रहे हैं कि वो क्या क्या है। Okay, now if this is EMF, then because of this t is continuously changing, omega t is changing, sin omega t is changing. जब हम ओमेगा t यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 कितना होगा? 0। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30.5, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 is equal to 1. Again theta rotates to 120, it is again 0.85, again it comes to 180, so it becomes 0. फिर 270 पे -1, फिर 360 पे 0, फिर +1, 0, -1, 0. So it keeps on fluctuating. That means E will also keep on fluctuating. जब ये E कम ज्यादा होता है, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब E मिनिमम होगा, और एक E का ऐसा मौका आएगा जब वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कब होगा? ये किसके कारण चेंज हो रहा है? साइन ओमेगा टी के कारण चेंज हो रहा है, क्योंकि ये तीनों तो नहीं बदलते, चारों नहीं बदलते। ऑल दीज फोर आर कांस्टेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, सो ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट। सिर्फ इसके कारण चेंज होता है। तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। जब इसकी वैल्यू 1 होगी उस समय ई कैसा होगा? मैक्सिमम। और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ई क्या हो जाएगा? मिनिमम, दैट इज 0। ओके, सो this EMF will be maximum और ये जो मैक्सिमम EMF है, इसका हमने नाम रखा, मेजरमेंट रखा E0, peak value of EMF, maximum. So this EMF will be maximum E0 when sin omega t is equal to 1. If sin omega t is equal to 1, तो E0 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, then E की जगह पे क्या लिखना है? E0. This is equal to nba omega, और sin omega t की वैल्यू 1. तो ये हमें क्या मिला? पीक EMF. Peak EMF, you can say maximum EMF, you can say amplitude. When something is fluctuating, the maximum value is amplitude. So this is peak value E0 and EA omega. अब इसको देखकर आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जनरेटर की किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है? Number of turns, strength of magnetic field, area, and omega. Omega is what? Revolution. That is rotational. Okay. Now if we make NBA, ये हम लोगों ने एक बार जनरेटर बना दिया। जनरेटर बनाया तो उसका M भी बन गया, D भी बन गया, A भी बन गया। अगर ये तीनों ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, तो E0 किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा। जितना फास्ट चलेगा उतना ज्यादा E0 पैदा होगा, और अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो पीक वैल्यू
वोल्टेज कम हो जाए। तो वोल्टेज किस पर डिपेंड करती है? एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये आपने देखा है मोटरसाइकिल चलाते समय जब हम उसको एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करते हैं तो बल्ब की लाइट ज्यादा हो जाती है। क्यों? हम क्या चीज बढ़ा रहे हैं? ओमेगा 2πf फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाते हैं, लाइट ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है। ओके, अब उसके बाद ये अगर ई नॉट की वैल्यू आ गई, देन ये टाइम से चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? व्हाट इज अवर ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर ईएमएफ? दिस E is related to T. जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे साइन ओमेगा टी बदलेगा और वैसे वैसे E की वैल्यू बदलेगी। ये वैल्यू हमने स्पेशल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। When for a particular case ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। ओमेगा टी 1 कब होता है? When ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री plus minus 1. Okay, this will be plus minus. This will. Okay. So, if we give equation number 2, then equation 2. Then equation 2 is E is equal to, ये वाला क्वेश्चन देखिए, NBA ओमेगा, ये NBA ओमेगा, ये क्या चीज है? E नॉट। सो दिस वी विल राइट E नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा दिस। In this, what are related? EMF and time. जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे EMF की वैल्यू चेंज होती जाएगी। So this is known as the equation of EMF. Equation of EMF from AC generator. Equation of EMF from AC generator. E is equal to E naught sin omega t. ओके, इसमें E नॉट की वैल्यू, ये इक्वेशन आपको याद रखना है और एक ये इक्वेशन याद रखना है। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ये EMF कैसे चेंज होता है? हाउ डज इट चेंज? उसको देखते हैं। ओके, हमने क्या किया? ये जो यहाँ पर कॉइल है जो ऐसे घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है और इसको हमने ऐसे घुमाना शुरू किया। वी स्टार्ट विद दिस कंडीशन और इसको पूरा एक राउंड घुमाएंगे, देखते हैं ईएमएफ कैसे चेंज होता है। सो वी विल टेक 5 स्टेज। फर्स्ट, this is magnetic field, direction of magnetic field P, and we put the coil like this. This is top view. ऊपर से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखता है और कॉइल ऐसी दिखती है। That is possible, you can understand. Okay. तो अगर कॉइल ऐसी है तो इसका एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल इधर होगा। दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज ओमेगा टी हियर? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड 0। अगर ओमेगा टी 0 है तो साइन ओमेगा टी कितना होगा? साइन ओमेगा टी विल बी 0। तो E की वैल्यू कितनी होगी? E इज इक्वल टू 0। इस समय हमने टाइम क्या लिया है? 0।
This is our first condition. And now we make a graph here. At this point, when time is equal to 0, this is t and this is EMF. EMF plus minus. We get this point, EMF 0, time is 0. 0, 0. Now after when the time is t by 4, ये coil ऐसे घूम रहा है. So after 1/4 of time, ये हो जाएगा, this is B and this is coil. This is area vector. This is B vector. ये coil लेके ऐसे आ गया. देखिए B vector तो उसी तरफ रहेगा. coil घूम रही है. coil 90 डिग्री घूम चुकी है. तो ओमेगा t कितना हो गया इसका? ओमेगा t इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको कितना कह सकते हैं पाई की भाषा में? पाई बाय 2. t की वैल्यू t by 4. What is capital T? Capital T is constant for total time period of one cycle. तो ये कितना घूम चुका है? 1/4 cycle. t by 4. ओमेगा t की वैल्यू 90 डिग्री. एंगल कितना है A और B के बीच में? 90 डिग्री. सो वी राइट हियर एंगल इज 90 डिग्री. अगर ऐसा होगा तो E की वैल्यू कितनी होगी? E की वैल्यू sin 90. sin 90 कितना होता है? 1. सो दिस E is equal to E naught. तो E की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? E naught. यहाँ पर ये वैल्यू हमने मान ली E naught. तो ये हमें मिला यहाँ पर. दिस इज E naught. ओके, लेट्स राइट इट हियर. हमें इस जगह की जरूरत है. सो हियर t by 4 ओमेगा t is equal to 90 degree. E is equal to E naught. And this is the point. Then third position, we get B in this direction. Again, it has rotated. It has come here. What is the direction of A? This is direction of A. B इधर है, A इधर है. तो ओमेगा t कितना हो गया? पाई 180 डिग्री. और साइन ओमेगा t कितना हो गया? That is again 0. So E is equal to 0. E is equal to 0. और अभी टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू t by 2. Then next, this is B. This rotate further. This A which was here, it goes in this direction, A, B. And this angle is now 270 degree. Omega t is equal to 270 degree. Therefore, sin omega t is equal to -1. So E is equal to minus E naught. So E is equal to, at this position, E is equal to minus E naught. This is minus E naught. This is plus E naught, this is minus E naught. Again it rotates and make a complete round 360 degree. Now it is, it was like this. Again it rotates further
and come to this position. So this is area vector. Area vector rotate this way. This is area vector. This is vector B, and angle between them omega t is equal to 0. Here the time was 3/4 t. Here the time is equal to t. Okay, omega t is equal to 0, sin omega t is equal to 0, therefore t is equal to 0. So we get it again 0. These are the 5 situations. T is equal to 0, t is equal to t by 4, t by 2, t by 4t and t. एक साइकिल में EMF कैसे चेंज हुआ? Here E is equal to 0, E is equal to E naught, E is equal to 0, E is equal to minus E naught, E is equal to 0. So ये हमने निशान लगाया। अब ये जो 5 निशान लगे हैं, इनको हमको आपस में मिलाना है। मिलाने से हमको इसका ग्राफ मिलेगा। लेकिन इसको किस तरह से मिलाएंगे? Can we join them in this way? Answer is no. We can't do it this way. ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या? साइन का फंक्शन अगर आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है तो साइन का फंक्शन कैसा होता है? साइन इज रिस्पेक्ट टू टी। ओके, उसको थोड़ा सा और बारीकी से देखिए, मैं उसको आपको सेपरेटली बताता हूं। यहां पर here how much is the angle? 0. यहां पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये कुछ टाइम खर्च हुआ t/4। इसके हमने 3 पार्ट कर दिए, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। हर 30 डिग्री घूमने में टाइम बराबर लगेगा। कितना टाइम लगेगा? t/12, t/12, t/12। तीनों मिला के कितना हो गया? t/4। दिस इज t/4। ओके, अब थोड़ा सा साइन का वेरिएशन देखिए। ओमेगा टी 0, 30, 60, 90। टाइम इसमें कितना लगता है? t/12। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? t/12। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? t/12। ये तीनों टाइम आपस में कैसे हैं? इक्वल। यानी जब रोटेटर ऐसा घूमता रहेगा तो हर 30 डिग्री में उसको जो टाइम लगता है वो कितना होता है? t/12, क्योंकि टोटल 360 डिग्री। ओके, तो टाइम तो इक्वल 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 इंटरवल है। ये समझ आया? अब देखिए 0, 30, 60, 90। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? साइन 0, 0, साइन 30, 0.5, साइन 60, 0.85 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब E की वैल्यू, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को हमने E नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ? 0। ये कितना हुआ? 0.5 E नॉट, 0.85 E नॉट एंड दिस इज 1 E नॉट। इसमें थोड़ा इंक्रीज देखिए, यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ है? 0.5। यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ है? 0.35।
और यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ है 0.15। अब देखो शुरू में एंगल कितना, टाइम कितना चेंज हो रहा है, बराबर 3 हिस्से में, लेकिन जो E की वैल्यू है 0 से लेके कहां तक बढ़ी 1 तक, उसमें से आधा हिस्सा 0.5E कब बन गया, जब टाइम कितना हुआ था 1/3। सिर्फ एक पोर्शन में ही E इतना बढ़ गया, तो सिर्फ एक पोर्शन में E की वैल्यू कहां पहुंच गई 50%, यहां ये आ गया। दूसरे में फिर से T/12 टाइम में E की वैल्यू कहां पहुंची 0.85, कितना बढ़ा 0.35। तो ये जो 0.5 पहली बार बढ़ा था, दूसरी बार में कितना बढ़ेगा 0.35। पहली बार कितना बढ़ा था 0.5, दूसरी बार 0.35, ओके 0.5 एंड दिस 0.35। तीसरी बार में सिर्फ कितना बढ़ेगा 0.15, ये तीसरी बार में बढ़ा। तो जबकि रोटेशन कैसा है 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, पर E की वैल्यू एक बार 0.5 बढ़ती है, एक बार 0.35 बढ़ती है, और तीसरी बार सिर्फ 0.15। तो यहाँ पर पहले इसमें ये 0.5 आ गया, उसके बाद इससे 0.35 ऊपर बढ़ा, और फिर इससे सिर्फ 0.15 बढ़ा। अगर हम इनको मिलाते हैं तो पहली बार तो इसका स्लोप ऐसे जाएगा, दूसरी बार स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये 0.35 है, तीसरी बार और भी कम हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसमें 120 लेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा प्लस 0.15। तो यहां से फिर ये इधर यहां पर आएगा, सिर्फ 0.15 नीचे उतरेगा। तो हमको ये ग्राफ ऐसा, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ है ये इसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, एंड वी कॉल इट साइनोसाइडल ग्राफ बिकॉज इट इज मेड विद द फंक्शन साइन। साइनोसाइडल ग्राफ। तो इस तरह से ये शुरू के पोर्शन में EMF बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 30 डिग्री में, उसके बाद कम, उसके बाद और कम। ऐसा क्यों होगा? आप बड़े आराम से इसको सोच सकते हैं कि जब ये ऐसा रहता है उस समय एंगल कितना रहता है 90 डिग्री, ये कॉइल, ओके। जब ये ऐसी चलेगी तार, ये कॉइल की कंडक्टर है, 4 कंडक्टर, यहां पर ये इसको ऐसा काटेंगे, और जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसा काटेंगे, ऐसा काटेंगे। अब देखो इसमें ज्यादा कटिंग हो रही है कि इसमें ज्यादा कटिंग हो रही है? ये सेकंड केस में ज्यादा कटिंग हो रही है। ये 30 डिग्री घूमा और उसने 10 लाइनें काट दी, ऐसा 10 लाइन्स काट दिया। लेकिन जब यहाँ पर होगा तो ऐसा 30 डिग्री घूमा, मुश्किल से एक लाइन काटेगा, एक भी नहीं काटेगा, ऐसा स्लिप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कटिंग कम करेगा, EMF कम करेगा, इधर आएगा कटिंग ज्यादा करेगा, तो EMF ज्यादा। ओके, इस तरह से इसका EMF यहाँ ज्यादा बनता है जब A और B दोनों एक डायरेक्शन में हो। इस समय यहाँ पर मैंने आपको बताया मैक्सिमम काटेगा, तो जब ये ऐसा मैक्सिमम काटता है तो E कितना होता है, E0 के बराबर। ये वो वाली लोकेशन है जब ये ऐसा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दिस वे एंड दिस इज कॉइल, दोनों ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे, ज्यादा करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज मेड, और इसको हम लोग थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। नाउ दिस ग्राफ विल बी like this.
Okay, make it as smooth as possible. T by 4, T by 2, 3 by 4, 2. This is minus E naught. This is plus E naught. This is 0. This is 0. This is one cycle of rotation. Okay. So in one cycle of rotation, EMF इस तरह से चेंज होता है. तो EMF प्लस और EMF माइनस, व्हाट डज इट मीन? अगर हम इसमें ऐसे सर्किट को कंप्लीट करेंगे, प्लस EMF मींस इन वन डायरेक्शन, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, करंट गोज लाइक दिस. माइनस EMF का मतलब कि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो करंट ऐसे जाएगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए. ये कॉइल, अगर हम इसको ऐसा लेटा दें और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये देखिए ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए किधर जा रहा है? ऊपर. तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाएंगे, हमारा राइट हैंड का रूल है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे, याद रखिए ऐसे. अब ये ऊपर पहुंच गया. ऊपर पहुंचने के बाद बाकी हाफ साइकिल क्या करेगा? नीचे आएगा. जब ये नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वही है, पर हमको अपने थंब को, अंगूठे को नीचे करना पड़ेगा. तो डायरेक्शन कैसी हो गई करंट की? इस तरफ हो. तो सेकेंड हाफ में ये साइकिल कि इसकी करंट इधर जाए. अब इसके साथ रिंग तो एक ही जुड़ा हुआ है, तो एक बार इस रिंग में से ऐसे करंट आएगी और दूसरी बार इस रिंग में से ऐसे करंट जाएगी. तो व्हाट वी गेट? वन दिस वे एंड वन दिस. हाफ ऑफ द साइकिल करंट इन वन डायरेक्शन एंड हाफ ऑफ द साइकिल करंट इज इन द अदर डायरेक्शन. लिखिए, in half of the cycle, current is in one direction, and in other half of cycle, current is in the other direction. ओके, ठीक है. तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या, ये जो करंट है, दिस EMF एंड दिस करंट, लिखिए इसके बारे में. दिस EMF एंड दिस करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. दिस EMF एंड द करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. ओके. At every instant, its magnitude is changing. At every instant, its magnitude is changing, and its direction reverse periodically. Its direction reverse periodically. इसका ये मतलब है, देखिए यहां पर इस इंस्टेंट में EMF कितना है, ठीक इससे अगले इंस्टेंट में EMF कितना है. कोई भी दो इंस्टेंट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें EMF एक जैसा होगा लगातार. इसका ये मतलब है EMF इज चेंजिंग कंटिन्यूअस. लेकिन यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है, इस सब में EMF कैसा रहता है? पॉजिटिव. दैट मींस करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. इन सेकेंड पीरियड
द करंट फ्लोज इन अल्टरनेट या रिवर्स डायरेक्शन। तो इसके लिए हमने क्या शब्द यूज किए हैं? द डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। एंड हाउ मच इज दैट पीरियड? T/2, हाफ साइकिल पीरियड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट जनरेटर। सो व्हेनेवर इट कम्स टू एग्जाम, इसको 5 पॉइंट में अलग-अलग पॉइंट देके लिखिए। नॉर्मली इट कम्स इन, अगर ये 5 मार्क्स में भी आता है, काफी आता है। जिस तरह से आपने साइक्लोट्रॉन याद किया है या वान डी ग्राफ जनरेटर याद किया है, वैसे इसको भी करना है, ये भी 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, E नॉट इज इक्वल टू MBA ओमेगा या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। ठीक, उसको हम लोग AC में डील करेंगे। With this generator, we have already started chapter of alternating current. क्यों? क्योंकि इसने हमको क्या बना के दिया है? Alternating current. So, the principle of generation of alternating current. This is the answer. AC generator. This is the answer. When a coil rotates in magnetic field, what happens? This is the answer. ठीक है? तो ये सब चीजें इसमें आती हैं. So next class we will do alternating current.